Hello everyone, good morning. Welcome to the lecture of DRCS. We have started a water tanks and we have calculated examples of a circular water tank, rectangular water tank. We have calculated examples of raised on a groundwater tank and a underground water tanks. Now we will start the overhead water tanks. In a overhead water tanks, there are types of elevated water tanks. So first one is the square or a rectangular water tank, second one is a circular tank, third one is the intact tank and fourth one is the conical tank, right? So ये सारे अकॉर्डिंग टू आपके शेप्स के अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ द वाटर टैंक डिवाइड किए गए हैं. तो उसमें आज हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे. हम लोग एग्जांपल के थ्रू डायरेक्टली सीखेंगे कि उसकी डिज़ाइन कैसे होती है. So let's start one example. Design a rectangular RCC water tank of a 6 meter by a 3 meter with a maximum depth of 2.5 meter of a water. Right? The tank raised on a brick masonry walls all around. Use M30 concrete and Fe415 grade of a steel. So this example is given for a design of a rectangular RCC tank of a overhead tank. So here L is a 6 meter, B is a 3 meter, H is 2.5 meter, L by B we will get 2 because our L is 6 and B is 2. So therefore the long walls will be designed as a vertical cantilevers and short walls as a spanning horizontally between a long walls. Bottom 1 meter height of a short wall will be designed as a cantilever. So first of all we will calculate a design constant as we do in all design of water tanks. So first here M30 grade of concrete is given and steel we will use is a Fe415. So sigma CBC will be a 10 Newton per mm square and sigma ST will be 130 Newton per mm square for a M30 grade of concrete and Fe415 grade of steel. Now we will find M 9.33. Equation for the K. Equation for the K is M into sigma CBC upon M into sigma CBC plus sigma ST. This equation we have found from the IS code as we have also calculated examples earlier by using this equation. So we will put these all dimensions in this equation. Here M is a 9.33, sigma CBC is a 10 Newton per mm square. Again sigma ST is a 130. So we will put this all dimensions in this equation and we will find a K 0.418. Now we will calculate a J. So equation for the J is a 1 minus K by 3. Here K is a 0.418. So we will put all value in this equation and we will find a J 0.861. Now we have an equation for Q is a 1/2 sigma CBC into K into J. Now sigma CBC is a 10, K is a 0.418 and J is a 0.861. And after putting this all value in equation of Q, we will get a Q 1.80. Now we will calculate M by putting this value in this equation Q into B into D square, right? So this is now we will start a design of a long walls. So for a design of a long walls, first of all we will calculate a moment. So for calculating the moment, first of all we will calculate the area of this particular pressure distribution. So pressure at base will be a gamma W into H. So pressure at base will be 24.5 kilonewton per meter square. And the pressure diagram will be a triangle shape. So we will calculate the area of that particular triangle. So here height of that triangle is 2.5. And base is 24.5. So we will get a moment 1/2 into 24.5 into 2.5. अब हम लोग एरिया के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है. सो ये CG का डिस्टेंस होगा 1/3 इंटू 2.5 पे. सो हमें मोमेंट मिल गई 25.52 किलो न्यूटन इंटू मीटर.
हम लोग ये इक्वेशन से भी डायरेक्टली मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस मोमेंट प्रोड्यूसेस टेंशन ऑफ लिक्विड फेस, राइट. सो आगे हम लोगों ने इक्वेशन देखा था m इज इक्वल टू क्यू इंटू बी डी स्क्वायर वाला. सो वो इक्वेशन में हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग d फाइंड आउट करेंगे. सो ये जो हम लोग d फाइंड आउट करेंगे वो d हमें स्मॉल d मिलेगा. उसके अंदर हम लोग रेनफोर्समेंट कवर प्रोवाइड करेंगे और कवर प्रोवाइड करने के बाद हमें जो d मिलेगा वो हमारा कैपिटल D होगा, राइट. सो ये इक्वेशन है, उसमें m की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 25.52 इंटू 10⁶. q हमें मिला था आगे 1.8, b 1000 और d की जगह पे हम लोग d ही रखेंगे और हम लोग वैल्यू ऑफ d फाइंड आउट करेंगे जो हमें मिल रही है 119.07 mm. ठीक है. सो ये d हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 150 mm. अब d 150 mm प्रोवाइड कर रहे हैं स्मॉल d, तो कैपिटल D के लिए हम लोग 50 mm कवर उसमें ऐड करेंगे. सो हमारा कैपिटल D हो जाएगा 200 mm. Now we have a equation for the AST. So equation for the AST is m upon sigma st into j into d. This equation we have taken from the IS code. We will put a value of m is 25.52 into 10⁶. Sigma st is 130. Here j is a 0.861 and small d is a 150. So our sigma st will be a 1520 mm square. Now we will provide a 16 mm dia at a 130 mm center to center. So our AST provided will be a 1547 mm square on a liquid phase in a vertical direction. ठीक है. हमें ये मिल गया डायमेंशन कि हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. ये मिलने के बाद हम लोग 50% ऑफ तक जो बार्स है वो कर्टेल करेंगे एट हाइट ऑफ 1 मीटर अबाउ द बेस. ठीक है. सो नीचे से 1 मीटर तक के बार्स हम लोग 50% बार्स कर्टेल करेंगे. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट टेंशन इन अ लॉन्ग वॉल्स. सो the pressure the water pressure acting on a short walls will be cause direct tension in a long walls, as the top portion of the short wall act as a slab supported on a long walls. So सबसे पहले हम लोग प्रेशर फाइंड आउट करेंगे. सो प्रेशर का इक्वेशन होगा गैमा W इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h. बिकॉज हम लोगों ने आगे देखा था कि हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे स्मॉल h की वो 1/4 ऑफ द h या फिर 1 मीटर, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो लेंगे. सो यहाँ पे 1/4 ऑफ द h हमें 0.625 मीटर मिल रहा है जो कि 1 मीटर से कम है. ठीक है. सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे h की जो वैल्यू ले रहे हैं वो 1 मीटर ले रहे हैं. So gamma W is 9.8, capital H is 2.5 and small h is 1. So we will get a P 14.7 kilonewton per meter square. Now we will find a direct tension in a long wall. So TL is equal to P into B by 2. Here B is a 3 meter and P we have found it 14.7 kilonewton per meter square. So we will find that TL is a 22.05 kilonewton. Now we will put the value of this TL in an equation of AST. So equation of AST is a T upon sigma ST. Here T we have found it 22.05 kilonewton and sigma ST is a 130. So we will put all value and we will find the area of the steel 169.62 mm square. For a rectangular water tank, PT minimum should be a 0.24%. Here D is a 200 mm and we will provide all bars in a one side. So we will take a D by 2. So our D by 2 will be 100 mm. So we will take for finding AST 100 mm. So PT BD upon 100. सो यहाँ पे हम लोग 0.24/100 B 1000 ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग D 100 लेंगे क्योंकि हम लोग इनर फेस पे ही प्रोवाइड कर रहे हैं रेनफोर्समेंट. सो हमारा AST हमें मिल गया 240 mm स्क्वायर. सो यहाँ पे हम लोग 8 mm @ 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे. सो AST हमारा हो जाएगा 251 mm स्क्वायर इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन ए इनर फेस. ठीक है. अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील.
सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए भी हम लोग सेम 0.24% जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आउटर फेस पे प्रोवाइड करेंगे। आगे हम लोगों ने ये जो था प्रोवाइड किया था वो इनर फेस पे प्रोवाइड किया था। सो आउटर फेस पे ये प्रोवाइड करेंगे। सो अगेन यहाँ पे भी सेम हम लोग प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर इन अ वर्टिकल एंड अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन अ रिमोट फेस। So our AST provided will be 251 mm square, right? Now we will design for a short walls. So top portion of the wall h minus small h act as a slab supported on a long walls. So you can see in this figure, this is the outside and this is the inside figure. So water pressures come here. So inside a positive pressure will be there and negative pressure at the outside. So first of all we will calculate the pressure at a height of 1.5 meter from a top. So gamma w into h minus small h, that is 1.5. So we will get a P 14.7 kilonewton per meter square. Now moment at support will be a PB square by 12. So here P is a 14.7, B is a 3. So we will put a value and we will find MF. So MF on a liquid phase will be 11.02 kilonewton into meter. Now we will calculate a moment at center. So here moment at center will be WL square by 8. So here P is a 14.7, B is a 3, and so we will get a value, we will put all the value here and we will get 8.26 kilonewton into meter. ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। Now direct tension in a short wall due to a water pressure on a 1 meter width of the long will be TS is equal to gamma W into 1, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1.5 हम लोग लेंगे। सो ये वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करके रखी थी, तो वो 14.7 थी, उसको उसके साथ 1, क्योंकि 1 मीटर विड्थ ऑफ लॉन्ग के लिए कर रहे हैं। सो हमारा TS हो जाएगा 14.7 किलोमीटर। नाउ वी विल फाइंड द X। सो X विल बी अ स्मॉल d माइनस t बाई 2, मतलब कि हम लोगों ने जो थिकनेस प्रोवाइड की है उसके हाफ। सो D हमारा है 150 और T है 200. So we will put value of this in and we will get value of X 50 mm. Now we will provide AST at support and at center. So first of all we will provide area of the steel at support. So AST1 for a moment, AST1 हम लोग 10.28 into 10⁶ मोमेंट के लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसका इक्वेशन था ये m अपॉन सिग्मा ST इंटू J इंटू D, राइट। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमें AST1 मिलेगा 612.12 mm स्क्वायर, और AST2 हम लोग डायरेक्ट टेंशन के लिए प्रोवाइड करेंगे। जो हम लोगों ने आगे फाइंड आउट किया वो हमें मिला था 14.7, राइट। सो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमें AST2 मिल रहा है 113.7 mm स्क्वायर। So total AST required will be summation of this both. So here AST1 is a 612.12 and AST2 is a 113.7. So total AST will be 725.20 mm square. Now we will provide a 12 mm dia at 150 mm center to center. So we will take this value from the SP16. You can find the tables of this number of bars and number of center to center. We will take this value from this table and our AST provided will be a 754 mm square at the inner face at a support in a horizontal direction, right। अब हम लोग क्या करेंगे, at a center find out करेंगे। So at a center again हम लोगों ने जो AST for moment find out किया था वो था 7.52 into 10⁶, और वैल्यू है 130 सिग्मा ST की, ये है J 0.861 और ये D है 150। सो सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहाँ पे टोटल AST1 मिल रहा है 448 mm स्क्वायर। AST2 फॉर डायरेक्ट टेंशन जो हमने आगे फाइंड आउट किया था वो सेम रहेगा। सो वो है 113.7 mm स्क्वायर। दोनों का सम्मेशन करेंगे तो हमें टोटल AST रिक्वायर्ड मिल जाएगा जो है 561 mm स्क्वायर, जो AST मिनिमम क्राइटेरिया से बड़ा है, ठीक है।
सो हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे। अगर ये कम होता और हमारा AST मिनिमम जो है वो ज़्यादा होता तो हम लोग AST मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट शुड बी सेटिस्फाइड इन ऑल कंडीशंस, राइट? So here we will provide a 12 mm dia at 200 mm center to center. We have taken this value from the SP16, and our AST provided will be a 565 mm square at a center on a outer face in horizontal direction. Now we will provide a distribution steel in a short walls. So provide 8 mm dia at 200 mm center to center. So this is the minimum steel criteria. Minimum steel criteria is a 0.24 percentage, and we have finded this earlier in a long wall design. So we will take same value in a short wall also. So distribution steel provided 8 mm dia at 200 mm center to center. Here provided AST is a 251 mm square in a vertical direction on outer face. Now we will provide the area of the steel in a bottom portion of 1 meter height. So bottom portion of a 1 meter height will be designed as a cantilever. So in a cantilever, first of all we will calculate a pressure at bottom. So pressure at bottom is gamma W into H. So gamma W is 9.8 and H is 2.5. So we will put all value in this equation. Now we will calculate M, moment at base. So for calculating a moment at base, we will do area into perpendicular distance of that CG. So here area is 1/2 into 24.5 into 1 because we are providing a bars in a 1 meter height. So here we will calculate a moment at base for 1 meter height. That's why we have taken 1 here into 1/3 of 1. This is a perpendicular distance of this moment. So first of moment will be a 4.8 kilonewton into meter. Now from this moment we will find the AST. So we will put the value of this all in a equation of AST, and we will get the area of the steel 243 mm square. Again this is the minimum criteria of the reinforcement. So we will provide 8 mm dia at 200 mm center to center in a vertical direction on a liquid phase. ठीक है, हम लोगों ने अभी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की डिज़ाइन कर ली. सो सारे एग्जांपल्स में आगे भी हम लोग जो करते थे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की डिज़ाइन, सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है. उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे डिज़ाइन ऑफ अ बेस स्लैब. ठीक है, so thickness of the base slab may be a 40 mm to 50 mm, that is greater than a thickness of a wall. So wall thickness कितनी है 200 mm. so हम लोग यहाँ पे अगर 40 mm ले रहे हैं, so हमारी thickness of the base slab कितनी हो जाएगी 240 mm, और हमारा स्मॉल d कितना हो जाएगा तो 190 mm. बिकॉज हम लोग 50 mm जो कवर प्रोवाइड करते हैं वो माइनस कर लेंगे तो हमें स्मॉल d कितना मिलेगा 190 mm. So we are providing a 190 mm base of a wall. So maximum sagging moment at a center due to weight of water and water pressure on long wall we will calculate. So for calculating a maximum sagging, we have a equation gamma W into B cube upon 24. This is a equation for a maximum sagging moment, right? So we will put a value of gamma W 9.8, B is a 3. So we will get M is equal to 11.02 kilonewton into meter, and a self weight of the slab will be a 0.23 into 25. ठीक है, सो हमें लोड कितना मिल गया यहाँ पे 5.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब सेगिंग मोमेंट ड्यू टू वेट ऑफ द स्लैब कितना हो जाएगा, सो WL²/8. सो हियर W इज़ 5.75, L मतलब कि B लेंगे यहाँ पे, सो B इज़ 3, एंड वी विल गेट अ मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट ड्यू टू वेट ऑफ द स्लैब इज़ 6.46 किलोन्यूटन इंटू मीटर. सो मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट विल बी 11.2 प्लस 6.46. सो हमें मिल गया 17.48 किलोन्यूटन इंटू मीटर. सो ये हमें कैसे मिलेगा T, तो T कैलकुलेट करने के लिए gamma W इंटू B²/8. सो यहाँ पे gamma W हमारा 9.8 है और B है 3. ठीक है, सो ये भी हमें 11.02 किलो न्यूटन मिल गया.
अब हम लोग मॉडिफाइड मोमेंट एट सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले ये x की वैल्यू क्या है। सो हमें पता ही है कि x क्या है, d माइनस टी बाई 2 है। सो यहाँ पे स्मॉल d हमने कितना प्रोवाइड किया था 190 और टोटल थिकनेस कितनी है 240। तो d माइनस 240 बाई 2 हमें 70 mm मिला। सो हमारा x है 70 mm। तो मॉडिफाइड मोमेंट एट सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा 17 माइनस टी इंटू एक्स। 17.48 क्या है, आगे हम लोगों ने जो मोमेंट फाइंड आउट की थी टोटल मोमेंट वो है, जिसमें हम लोग ये टी हमने फाइंड आउट किया था 11.02 और एक्स 70 mm मतलब कि 0.07 मीटर। सो हमें टोटल मॉडिफाइड मोमेंट एट सेंटर मिल रही है 16.71 किलो न्यूटन इंटू मीटर, टेंशन ऑन अ रिमोट फेस, राइट। सो हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे AST1 फॉर मोमेंट एंड AST2 फॉर अ पुल। सो फॉर अ मोमेंट वी विल टेक दिस मोमेंट। सो here moment is 16.71 into 10 raised to 6 and we will put other values here and we will find AST1 786 mm square. And for pool we have a moment 11.02 into 10 raised to 3 and sigma st is 130. So AST2 will be 84.77 mm square. अब हम लोग इन दोनों का समेशन करेंगे। सो हमें टोटल AST मिलेगा जो है 871 mm स्क्वायर। अब हम लोग 12 mm डाया प्रोवाइड करेंगे एट 130 mm सेंटर टू सेंटर। सो यहाँ पे हमारा AST रहेगा 870 mm स्क्वायर एट अ बॉटम ऑफ अ स्लैब, राइट। सो ये वैल्यू हम लोगों ने अगेन SP16 में से ली है। सेम यहाँ पे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे और वो स्टील भी 0.24% ही प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम जो क्राइटेरिया है हमारा उसके हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हमारा PT मिनिमम है 0.24, ठीक है। सो ये PT मिनिमम AST इज इक्वल टू PT BD करेंगे। यहाँ पे B हम लोग 1000 लेंगे और D लेंगे 240, ठीक है, बिकॉज 240 टोटल थिकनेस है। सो हमें AST मिलेगा 576 mm स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे 10 mm डाया 130 mm सेंटर टू सेंटर एट बॉटम फेस। सो प्रोवाइडेड AST हमारा है 604 और हम लोग मिनिमम AST भी वाटर की बोथ वेज में प्रोवाइड करेंगे सेंटर। तो वो है 10 mm डाया एट 260 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। अब हम लोग एट सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सपोर्ट पे कौन सी मोमेंट लगेगी, हैगिंग मोमेंट लगेगी जब फुल टैंक कंडीशन होगी। सो वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग हाइट कितना लेंगे 2.5, ठीक है। सो मोमेंट हमें कितना मिलेगा 9.8 इंटू 2.5 रेज़ टू 3 डिवाइड बाई 6। सो हमें मोमेंट मिल गई 25.52 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये हमें इसके लिए अब हम लोग पूल के लिए टी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो टी फाइंड आउट करने के लिए अगेन इक्वेशन है गेमा W इंटू एच क्यूब बाई 2, ठीक है। WL स्क्वायर बाई 2 जो हम लोग देखते हैं इक्वेशन वही हमें ये पूल में यूज़ करना है। सो अगेन यहाँ पे 9.8 इंटू 2.5 स्क्वायर बाई 2 रहेगा। सो टी हमें मिल गया 30.62 किलो न्यूटन। यहाँ पे भी हम सेम मॉडिफाइड मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो ये x 70 ही रहेगा। सो हमारा ये मोमेंट था 25.52, उसमें से हम लोग t इंटू एक्स माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 23.38 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम लोग AST फॉर बेंडिंग मोमेंट और AST2 फॉर पुल फाइंड आउट करेंगे। सो बेंडिंग मोमेंट हमें जितना मिला था वो यहाँ पे मॉडिफाइड मोमेंट यूज़ करेंगे और हमें AST मिलेगा 1099 mm स्क्वायर और AST पूल के लिए 30.62 फाइंड आउट किया था हम लोगों ने T। सो वो पुट करेंगे और ये सिग्मा ST है 130। सो वो हमें मिल रहा है 236 mm स्क्वायर। सो हमारा टोटल AST इन दोनों का सम्मेशन हो जाएगा जो कि हो जाएगा 1335 mm स्क्वायर। अब हम लोग अगेन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 16 mm डाया एट 150 mm सेंटर टू सेंटर। सो यहाँ पे हमारा AST प्रोवाइडेड हो जाएगा 1340 mm स्क्वायर ऑन अ वाटर फेस नियर अ सपोर्ट अलॉन्ग द स्पान। सो रेनफोर्समेंट डिटेल हम लोगों ने जो भी फाइंड आउट की है हमें सारी फिगर में बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर है सेक्शन XX, ठीक है। हम लोगों ने एक प्लान था उसमें से सेक्शन कट किया है जिसमें आपको ये वॉल्स की डिटेल दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इसमें हम लोगों ने 12 डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड किए थे और ये मेन बार्स है 8 डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर,
थिकनेस ऑफ द वॉल बताया है। ये बेस स्लैब था, बेस स्लैब की थिकनेस हम लोगों ने 240 ओवरऑल बताई थी, फाइंड आउट की थी। 10 डाया 260 mm सेंटर टू सेंटर पे प्रोवाइड किया था, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हम लोगों ने 12 डाया 130 mm सेंटर टू सेंटर पे प्रोवाइड किया था। ये है मेन बार जो 10 डाया 130 mm सेंटर टू सेंटर पे प्रोवाइड किया था। अगेन ये है प्लान, ये प्लान में से ये XX था जो आप लोग देख रहे हो, शॉर्ट वॉल आपको दिखाई दे रही थी, और ये प्लान में से YY कट कर रहे हैं जिसमें से आपको लॉन्ग वॉल की डिटेल दिखाई देगी। ठीक है, लॉन्ग वॉल की डिटेल यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो, और आपको सेक्शन में भी कट करके बतानी पड़ेगी। तो ये है लॉन्ग वॉल की डिटेल। लॉन्ग वॉल में आपने 8 डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया था, और 16 डाया 260 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया था। ये है 8 डाया 200 mm, अगेन बोथ साइड पे प्रोवाइड किया था, जो ये दोनों है। यहाँ पे स्लैब की डिज़ाइन, स्लैब की डिटेल जो आपने आगे ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, सो ऐसे आपको प्लान और 2 सेक्शन बताने पड़ेंगे जिसमें आप लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों की बताओ डायमेंशंस, और आपको बेस स्लैब में भी आपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं उसकी भी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वो आप घर से सॉल्व कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।